It's always a learning. Whenever you come to this particular class, you learn always something new, something new. Many times we learn from you people that these are also the contexts. So we come across various contexts. So I will not take much of time because most of the things are already being dealt. So I am Dr. Tej Prakash, work as additional professor in Department of Emergency Medicine. So communication, since morning we are listening about communication. So both sir started with presentation skills, which involves communication. Most of us think that we as human, most evolved one, can communicate in best way, and this is something which is given by the God to each one of us. This is perception, may not be the reality. Only thing is that we can have verbal communication. That's why. Yes, so there are various things that today during the presentation skills you must have learnt about the soft gestures or non-verbal communications. So they are also a way of communication. So it is not only the verbal one or textual ones, but this is multiple times this is implied by your way how you are expressing yourself. So that is also a way of communication. So if I take this communication, so we are going to just limit over few things. See, communication happens everywhere. It is not something that we as human only doing, others are also doing it. So if we talk about the routine one or day to day versus a healthcare setting, I will take you further deep to emergency care setting, that is a more complex environment where communication may win or may make you a big loser, and there may be multiple issues which is happening nowadays, very common. So how routine versus special scenario, how you should plan your communication. So what will be the key components of communication? Can we have some kind of structure by which we can communicate to the people? And going further deep in day to day communicating during emergency care, further deep breaking the bad news. When the worst kind of scenario, most complex kind of scenario is happening, how you are going to communicate. So these few things I am going to take you through in next almost 15-20 minutes. See, if you go back, like sir was telling, like a very good example as a blue mother and teacher, right? Ma'am and mom. So from mom to ma'am, it was happening. So if we see how we are raised up, हमारी कैसे लर्निंग कैसे चलती है पूरी, सब लोग सोचते हैं कि एम्स में होंगे तो बेस्ट ही होंगे, नहीं, कंपैरेटिवली बेटर बोल सकते हैं, बेस्ट के लिए तो और भी चाहिए, नो डाउट बहुत लोग बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन अगर हम बैकग्राउंड देखें, हमारी जो मेडिकल लर्निंग है, टीचिंग है, उसकी मेथोडोलॉजी में कितने बार इस तरीके से पढ़ाया जाता है. सो अगर आप देखेंगे हमारी पूरी जो मेडिकल लर्निंग है उसमें हम क्या करते हैं, हम पूरा एविडेंस ढूंढते हैं, साइंटिफिक है ना. आपने बोला चप्पल इधर नहीं खोलो, तो बोले यहाँ खोल देंगे तो क्या होगा, सफाई तो होता ही है ना. बच्चे बोलते हैं ना, बच्चे बोलते सफाई तो होता है ना, यहाँ रखो वहाँ रखो, उससे क्या हो रहा है. सो वी ऑलवेज सर्च फॉर एविडेंसेस, व्हाई इट शुड नॉट बी डन लाइक दिस, व्हाई ओनली दिस, व्हाई नॉट दैट. सो हमारी पूरी लर्निंग टीचिंग ये है कि बॉडी में अगर इतने ही हड्डी होते हैं तो बस याद कर लो इतने ही हड्डी होते हैं, क्योंकि एविडेंस कहता है, एविडेंस कहता है. सो होल लर्निंग इज लाइक दैट. While learning, we want to become doctors, we want to become healthcare professionals, nurses. We don't want to become a person who thinks about a patient is there, how I am going to act for that. So whole curriculum is designed to make you a doctor or a nurse or a paramedic, whosoever you are. It is not to make you a person who is fit for that job which he is meant for, he or she is meant for. So that's why it is less patient oriented,
पर्सनल टच नहीं होता है, क्योंकि अब जब से MCQ आ गए, सब्जेक्टिव में तो आपका फिर भी थोड़ा पर्सनल टच था। गाय के 4 पैर होते हैं, पूंछ भी होता है, लिखते थे ना उसमें, कोई पहले पूंछ से शुरू कर लेता था, कोई सींग से शुरू कर लेता था। देयर इज ए थॉट प्रोसेस गोइंग ऑन। सो जब हम रिटन वर्क करते हैं, ऐसे राइटिंग जब पहले होती थी, हर के स्कूल में आते थे पहले ऐसे लिखना है, लेख लिखना है, तो वो थॉट प्रोसेस इनिशिएट कराता था कि हाउ यू थिंक। एंड सेम टाइम वाइल टीचर्स आर करेक्टिंग यू और समबडी टीचिंग यू, वो बताते थे हाउ यू शुड थिंक। बट अभी क्या होता है, कितने मार्क्स आए एक बार में, नॉट सेट PMT निकल गया, अच्छा इतने रंग, इतने तो ऐसे, ये तो बहुत पीछे है। हाँ बढ़िया है, शर्मा जी के लड़के को देखो, टॉप किया है। So whole curriculum is designed like that, where least emphasis is being given for making the interpersonal relations, that largely being brought by a good communication. So आप पूरा जितने बात हम कर रहे हैं, तो हम लोग क्या रहते हैं कि जब when you work in some area, so you know इस पेशेंट को साइंटिफिकली बेस्ट क्या करना होता है। जैसे गायनी के OPD में कोई आया, तो आपने बोला कि ठीक है पर्चा बन गया, हाँ बन गया, इधर बैठ जाओ, ठीक है बैठ गए, डॉक्टर साहब का टाइम आ गया, चलिए उठ के जाइए। उन्होंने बोला क्या हुआ, ऐसे 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 ऐसे, ये दवाई लीजिए, वहाँ काउंटर नंबर 14 पे सैंपल दीजिए, वहाँ से निकलिए, निकल जाइए। पूरा रोबोटिक चीज़ें चलती है। एंड आपको एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जो वहाँ पे गेट पे लड़का खड़ा है, HA ऐसे जो भी है, उसको क्या लगता है कि मुझे बोला गया, अस्पताल ने पैसे दिए हैं कि जो आए उसको इधर बिठाना है, बट ये उसमें सम्मिलित नहीं है, शामिल नहीं है, कैसे बिठाना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, किस तरीके से आप उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, ये नहीं है। उसका एक चेकलिस्ट है, बिठाना है। सीट खाली है, नहीं बिठाया, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का कोई आया, उसको नौकरी से बाहर। सो होल स्ट्रक्चर इज लाइक दैट। इसीलिए बहुत सारे इश्यूज हमारे आते हैं। ये हमारे साइड का ये प्रॉब्लम है, बिकॉज हमारी रेजिंग वैसी चल रही है। अगर मरीज की तरफ से सोचे तो वो क्या सोच रहा है, उसके तो बात ही अलग है। उसके तो बात ही, आप कह रहे हो कि उसके हार्ट में बड़ा सा छेद है, वो दिख तो नहीं रहा उसको ठीक है। सो वो सोच रहा है कि बात तो करते, बताते तो नहीं, कितना खर्चा बैठेगा, कितने दिन रुकना पड़ेगा, खेती छोड़ के आओ, धान आधा मैंने बो दिया, अब आधे जाके करूं कि कटनी तक पहुंचूंगा, कब पहुंचूं, उसके सवाल कुछ और चल रहे हैं। सो देयर वर्ल्ड इज टोटली डिफरेंट। सो वो भी अपने हिसाब से सही सोच रहा है, हम भी अपने हिसाब से सही सोच रहे हैं, हम कम्युनिकेट किए जा रहे हैं। एक ना कूली मूवी, अगर किसी को याद होगा, कूली मूवी में ना अमिताभ बच्चन वो हीरोइन को पकड़ के लाता है, फिर वो रेडियो पे कुछ चलता रहता ऑमलेट बनाने का, वो उसको लात मार के चेंज कर देती, तो ऑमलेट के बाद न्यूज़ चलने लगता है, तो पूरा ऑमलेट हो जाता है खराब, ठीक है। तो ये सोच रहा है कि वो जो रेडियो पे कम्युनिकेशन आ रहा है, वो तो ऑमलेट बनाने का आ रहा है। तो उसने बोला कि अब गलती से योगा वाले में चला गया, तो उसने बोला कि अपना पैर उठा के इधर रख लीजिए, उससे दूसरे पैर भी इधर रख ली, अब वो फंस गया, अब बोल रहा ऑमलेट बनाऊं कैसे, ये कौन सा रेडियो चैनल बता रहा है। सो मीनिंग टू से कि यू आर थिंकिंग आई एम गोइंग टू परसीव समथिंग, दैट इज योर ओन वे ऑफ परसेप्टिंग द थिंग्स। सो आपके एक्सपेक्टेशन ऑफ गेटिंग द कम्युनिकेशन इज ऑन योर ओन वे, व्हाट वी आर थिंकिंग इज आवर ओन वे। सो जब तक दोनों बराबर लेवल पे नहीं आएंगे, परसेप्शन जिसका है, जो परसीव करना चाहता है वो, और जो बोलना चाहता है वो, तो कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश ही नहीं होती है। मेनी टाइम्स वी फील कि हमने तो बता दिए जैसे डिस्चार्ज काउंटर पे आप देखें कि जब डिस्चार्ज चलता रहता है तो ठीक है, हाँ भैया, हाँ आपका मरीज का ना मतलब फ्रैक्चर हो गया है, इसके बाद आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, 3 दिन बाद सूजन जब कम होगी तो देख लेंगे, और 3 टाइम वो पूछ रहा है कि वॉशरूम कहाँ जा रहा है, बहुत जोर से लगी हुई है, पूछना वो चाह रहा है तो उसके सवाल कुछ और है, आप बताएं कुछ और जा रहा है, हाँ छुट्टी हो गई, निकल लो इधर से। सो बहुत मिसमैच चलता। तो आई वॉज टेलिंग कि जिस तरीके से हम चीज़ों को देखते हैं और कम्युनिकेट करने की कोशिश भी करते हैं, वेदर दैट वे इज फिट और नॉट वी डोंट नो।
सो इसलिए देर इज ए वास्ट डिफरेंस फ्रॉम द एक्चुअल थिंग्स और रियलिटी वर्सेस व्हाट यू आर डिलीवरिंग. सो अगर हम इमरजेंसी डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो इट इज फर्दर कॉम्प्लेक्स. टू मेनी पेशेंट्स आर कमिंग, सिनेरियोज आर फ्लक्चुएटिंग. अभी एक हार्ट अटैक का पेशेंट आ गया, दूसरा स्ट्रोक का पेशेंट आ गया, तीसरा आके गया था, दवाई लिया, पता नहीं चल रहा उसको, वो दवाई दिखाने आ गया कि पूछ तो लूँ, 350 की एक गोली आई है, गई गलती खा लिया तो पूछने आ गया बेचारा, वो भी जेन्युइन है. So there is so many things which is happening, and each time you have new kind of environment, because patients change होते हैं, patients के relative बदलते हैं, उनके perceptions different है. अभी आपने किसी से बात की, उसके बाद आए, आपने बोला अभी तो बताया रमेश के बारे में, तो नहीं वो तो मौसा थे, हम तो फूफा जी आ गए. तो कहने का मतलब है कि ईच टाइम द थिंग्स चेंजेस. आपको लग रहा है कि यार कौन सा अटेंडेंट है यार, अभी भी बदल जाते हैं हर 2 घंटे पे. वो सोच रहा है कि बूढ़े आदमी कमर में दर्द है, हम 2 घंटे खड़े रह गए, अब तो रात भर मेरा ऐसे गुजर जाएगा, अब बेटे को बुला के हम खड़ा कर दिए. सो उस साइड में क्या चल रहा है वी डोंट नो. एंड स्पेशली इमरजेंसी इज मोर फ्लक्चुएटिंग, मोर कॉम्प्लेक्स. एवरी डे शिफ्ट चेंजेस, मैन पावर चेंजेस. वार्ड में अगर कंपेरेटिवली करें तो जो पेशेंट आता है दे स्टे फॉर सम टाइम. ओपीडी में अगर आपकी गायनिक ओपीडी है, पीडियाट्रिक्स ओपीडी है, तो देयर इज ए पैटर्न, दो देयर इज ऑल्सो फ्लक्चुएशंस बट ए बिट लेस दैन द कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट, हाई स्टेक इन्वायरमेंट जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेसफुल इमरजेंसीज में. सो देर आर पेशेंट्स एंड देयर रिलेटिव्स, दे आर हैविंग देयर ओन वर्ल्ड्स. वी एज हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स वी आर हैविंग आवर ओन वर्ल्ड. ये सामान खत्म हो रहा है, इंजेक्शन खत्म हो गया, डायलोना कहाँ से उठा के लाऊं, जल्दी से लोन स्लिप भेज, सब चल रहा है उनका, वो अपने अपने हिसाब से चल रहा है उनका. सो दे आर हैविंग देयर ओन वर्ल्ड, एंड ऑल दिस कॉम्प्लेक्सिटी यूज टू क्रिएट लॉट ऑफ स्ट्रेस फॉर ऑल. इट इज नॉट दैट the only the patients and relative are under stress, but even the healthcare providers, because they also know how best we can do, but somehow the things are not happening. Okay. So this all makes this emergency as a complex department. And finally, if the communications are not in right way, it reflects as anger from both the sides, the user and the providers both. They also feel कि एक ही स्टाफ दिया है, अब बोल रहे हैं कि इसके वो भी शिफ्ट भी करा दो, फिर कह रहे स्टोर से सामान भी ला दो, फिर कह रहे रिश्तेदार है इसको भी समझा दो, फीडबैक फॉर्म भी भर लो. So there are multiple things. So that reflects in a bad communication. Once you are mentally in a different frame. अब जैसे अभी सर ने बताया ना, आप रेड कैरेक्टर में हैं तो सबको अच्छे लगेंगे, लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, अब धीरे धीरे आप ना रेड चेंज करके साइनोसिस में होने लगा. आप ब्लू में आप जा रहे हैं, ब्लू में जा रहे हैं, ऑक्सीजन घटता जा रहा है, साइनोसिस में जा रहे हैं आप. ठीक है, अब आगे ब्लू, अब ब्लू कैसे रिएक्ट करेगा आप जानते ही हो. अभी इतने सारे डिस्कशन हो गए कि ब्लू कैसे रिएक्ट करेगा, नहीं. सो दैट्स व्हाई दिस होल इमरजेंसी इज टोटली डिफरेंट. सो नाउ हाउ टू प्लान इट, हाउ टू डिलीवर इट, इट्स नथिंग बिग अबाउट इट. थोड़े से वर्ड्स के जार्गन है, मोस्ट ऑफ अस नो. सम और अदर टाइम वी मस्ट हैव रियलाइज यार ये शिफ्ट में रहती है ना, यह रहता है जबरदस्त कम्युनिकेशन है, ये तो फैन है इसके. तो वी हैव पीपुल whom वी वांट टू बी एज ए गुड कम्युनिकेटर. मैं उसको देख के कोशिश करता हूँ कि इसके जैसा बनना चाहिए कम्युनिकेशन में. इससे कभी झगड़ा नहीं होता है, आपको सबको पता होगा कि ये रहते हैं ना, कभी झगड़ा नहीं होता है, बिकॉज द वे यू कम्युनिकेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो देयर आर पीपल वी कॉल देम एज पॉजिटिव डेविएंट्स. अपने सेम इन्वायरमेंट में आप नहीं कर पा रहे बट कोई दूसरा कर रहा है, प्रॉब्ली उसका कलर का होगा बात, प्रॉब्ली दे आर एबल टू अडेप्ट विद दिस सिनेरियो, वी माइट नॉट बी. सो वेन एवर यू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग, जब भी आप कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं तो आपको सोचना चाहिए कि ओपनिंग कैसे करनी है ना, ओपनिंग कैसे करनी है. जैसे आप कहीं भी जाएंगे तो आए, तो जैसे अभी वोटिंग चल रही थी है ना, फैकल्टी एसोसिएशन की वोटिंग चल रही थी. सर इधर
कम्युनिकेशन हो गया। तो हम सोच रहे हैं ये कौन वाली बात होगी भाई, ये कौन सा कम्युनिकेशन है कि इधर निकल लो आप। ठीक है, यस। And other way, you go to some good restaurant or where there will be people who make the environment like such that you will feel at ease, and आपको पहला फील ये आता है कि they are for me. So that is the ice breaking. That is the ice breaking. So preparing the things, opening a conversation requires some kind of preparedness. Some kind of preparedness. And preparedness is, see, आप पहले कम्युनिकेट तो होता नहीं है, पहला तो आप शुरू कहीं से करेंगे ना, तो शुरू के पहले भी उसका नज़र से तो दिख रहा है। अब ईडी में है और हम चाय पी रहे हैं और ऐसे टेबल पे अड़े हुए बात कर रहे हैं, चाय पिए जा रहे हैं, अरेस्ट है क्या? अरे कैसे कट गया पैर, दोनों पैर कट गया। सो जैसे ही कोई आया तो ये इन्वायरमेंट ही अंडरस्टूड, विदाउट टेलिंग एनीथिंग ही अंडरस्टूड कि दे आर नॉट फॉर मी। तो पहला तो आपका वो अब जितना भी इनफ्लो होना था उसके लिए अब आपको बैकग्राउंड बनाने में बहुत टाइम लगने वाला है। सो पहला है प्रिपेयर्डनेस। तो वेन एवर यू ओपन द थिंग्स यू शुड बी प्रिपेयर्ड। इसीलिए ड्रेसेस के बड़े इंपॉर्टेंस होते हैं, अटायर के बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। हाउ यू आर ग्रूम्ड योर सेल्फ, बिकॉज दैट इज द इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन। इट इज नॉट योर वर्बल communication which will make your impression to initiate. It is the area, the environment, your own attire, your body gestures. जैसे आप देखेंगे वार्ड में भी कोई जेआर ना कभी लेट से ज्वाइन किया पीजी, ठीक है, बाल वाल हल्के हैं, थोड़ा निकला हुआ है, बट एकदम सीरियस घूमता है, तो पेशेंट के अटेंडेंट प्रोफेसर चुम्बर को छोड़ के उनसे बात कर रहा है। आप देखना होता है, ठीक है। और वो सर सोचेंगे कि लग रहा है कि ये वार्ड में बहुत काम करता है। बात उस काम की नहीं है, बात उस काम की नहीं है। ही हैज क्रिएटेड एन ऑरा वेयर दे कैन कनेक्ट विद हिम और हर। जैसे कुछ सर्जरी में होंगे, तो मैं रेजिडेंसी सर्जरी में मैंने किया है, सर्जरी में होंगे तो एक शिवशंकर पासवान था जेआर हमारा, वो पासवान जी जो थे उनका भतीजा, ठेठ बिहारी में अपना बात कर देता है। अब हो ठीक है, बेटा को भेज दिए, कहाँ ट्रेन से गया? अच्छा अच्छा, अरे खाओ पियो मस्त रहो, एम्स का खाना मिल रहा है, क्या इतना परेशान हो रहा हो, ऑपरेशन हो जाएगा। सो ही ट्राइड टू मेक ए कनेक्ट मेनी टाइम्स। आप देखो बहुत सारे लोग मलयाली में बात करते हैं, एंड यू विल सी द कनेक्ट। सो सम हाउ दे गॉट ए कनेक्ट, फ्रॉम कनेक्ट द रिस्पेक्ट्स कम्स, कॉन्फिडेंस कम्स, तब वो रिसीव करने के लिए तैयार होंगे आपके कम्युनिकेशन को। सबसे नहीं सुनते हैं। आप वार्ड में कुछ लोग काम कर रहे हो, जो सर्जरी में प्री ऑपरेटिव भेजते होंगे पेशेंट, हर बार कैंसिल हो रहा है, तो कुछ लोग हैं उसको गाली खाना पड़ता है कि यही बात सुबह ही बता देते, ऑपरेशन कैंसिल तो खाना तो खा लेते। 7 बजे शाम को बता रहे कि आज ऑपरेशन नहीं होगा, 7 बार से यही हो रहा है मेरे साथ। सो प्रिपेयर्डनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन अदर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आर इंगेजिंग। सो क्या आप इंगेज्ड हैं, उनसे बात हो रही है तो आप उसमें इंगेज है, या 4 चीजें और भी कर रहे हैं? कितना आप उसको ध्यान दे रहे हैं, इंगेजिंग है कि नहीं वो टॉक, दैट ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एम्फेसाइजिंग, सेम टाइम आप ट्राई कर रहे हैं कि इसको मैं अवेयर कर दूं, एजुकेट कर दूं। देन वॉट एवर प्रॉब्लम्स यू आर फाइंडिंग, यू ट्राई टू फिक्स दोज इश्यूज सो दैट ही विल हैव सस्टेन्ड कॉन्फिडेंस इन यू, ताकि आगे का भी कम्युनिकेशन है। देन फाइनली यू विल क्लोज डाउन कि ठीक है अभी का बात हो गया, और अगर ज़रूरत होगी तो फिर से हम बात करें। उससे बेसिक ब्रीफ कंपोनेंट्स ऑफ हैविंग एनी कम्युनिकेशन। रफली देर आर मेनी वेज टू डिफाइन दिस, बहुत सारे तरीके लोगों ने बताए हैं। एक सिंपल जो लगा वो मैंने सोचा कि एक बताने के लिए रखते हैं। एक तो है कि बी जेन्युइन, जो अभी हम बात कर रहे थे, वो तभी होता है जब आपके अटायर, बॉडी जेस्चर, प्रिपेयर्डनेस, और वो दिख रहा है कि काम होता है ना। फ्लाइंग स्क्वाड की तरफ आए
जैसे ईसीजी का एक टेक्नीशियन अभी तो रिटायर कर गए, वो जो होता था कि वो आपको हर समय किसी भी वार्ड में फ़ोन करो, वो बोलेगा कि बस अभी 7th गया होगा, D7 में होगा, D7 बात करो C7 होगा, C7 बात करो उधर, आप दौड़ते चले जाओ सारे जगह, कहीं नहीं दिखेगा वो। तो जिसका इंप्रेशन ये बना हुआ है, अगर वो अब आके कह रहा है कि सर हम तो ईडी में ही बैठे हुए हैं, तो हम तो विश्वास ही नहीं होना है, तो कुछ भी कम्युनिकेट कर। सो बी जेन्युइन मीन्स आपके एक्शंस वर्क रिफ्लेक्ट करते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो कर भी रहे हैं। तो वो सब लोग वॉच करते हैं, जो आप जहाँ भी काम करते हो पेशेंट हर चीज़ वॉच करता होता है, तो उससे आपकी एक रिफ्लेक्शन बनते रहती है कि हाउ यू आर एक्टिंग। देन ऑब्वियसली यू हैव टू बी प्रेजेंट, यू कैन आस्क क्वेश्चंस कि ठीक है आप ये कैसे हुआ बताइए, वो कैसे हुआ बताइए। सो कहने का मतलब कन्वर्सेशन को आप आगे लेके जा रहे हो, सो दैट कि आप दोनों तरीके से, एक तो आप उससे पूछ की जानकारी निकाल रहे हो और साथ में उसको भी आप मौका दो, उसको भी मौका दो, यस, टू मेक बेस, टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन विल सूट, व्हाट शुड बी द एक्चुअल कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन, ये सब इससे निकल के आएगी। ठीक है, और वो घुमा के बोलने की जरूरत नहीं होती है। एक कहते हैं ना कि भाई किसी को कैंसर हो गया तो बहुत बार लोग बोलेंगे कि इनको मत बताइए, हम बता लेंगे, इनको मत बताइएगा आप। एक ये सिनेरियो है, और एक सिनेरियो है कि आप कहना चाह रहे हैं कि आज आपका छुट्टी हो जाएगा वार्ड से, लेकिन आप शुरू किए कहानी, अरे एम्स में ना बहुत मरीज आते हैं, इतना पेशेंट रहता है, आप देखिए ना भर्ती के लिए 6 दिन से वो बैठे हुए हैं, वो 12 दिन से बैठे हुए हैं। सो आपका ना सोच रहे हैं कि डिस्चार्ज बन ही जाए आज, तो आप देखिए चले जाइएगा। उसको बोलना ये था कि आज आपका सब चीज़ ठीक हो गया, आज आपका छुट्टी होना है, बड़ा वो घुमा रहा है गिरनी के जैसे। सो उसको लगता है कुछ तो फॉल प्ले, इतना लंबा क्यों खेल रहा है मेरे साथ। तो ही इज नॉट कॉन्फिडेंट ऑन यू। सो इट इज obviously many times you need to be direct, but same time there are tricky scenarios where you should be on hold a bit, like जितने भी अब्रोड में बात होगी, US, UK, यूरोपियन कंट्रीज में, जब भी आप कम्युनिकेशन स्किल का उनसे क्लास लोगे तो वो कहेंगे नहीं, कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा बता दो आप। बट जैसे ही कल्चर कम्युनिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन फैक्टर्स। ह्यूमन फैक्टर में अगर ह्यूमन को आप कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो फिर इट मे बी डिवास्टेटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन टू गेट दिस काइंड ऑफ सॉकर एट वंस। सो बैड न्यूज़ हम जब हम देते हैं, वो भी हम थोड़ा सा एक उसमें बात करेंगे। बैड न्यूज़ हम देते हैं तो हमें एक उसकी प्रिपेयरनेस थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। व्हेन टू डू इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, हाउ मच टू डू, वेदर गिव इन वन गो और मे बी ए स्टैगर्ड मैनर, थोड़े बारी बारी से दें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो जो इसमें थोड़े से इसको इलाबोरेट करने की कोशिश की हमने, वही जो अभी हम बात कर रहे थे, है ना। सो इसमें बाकी बातें हमने कर ली। एक इम्पैथी वर्ड आता है, सिंपैथी एंड इम्पैथी, है ना। तो सिंपैथी इज नॉट टेकन एज अ गुड थिंग। आप उसको बता रहे हो कि तू तो गया ही, अब जाने ही वाला है, अब क्या है तेरे जीवन में क्या रखा है, बड़ा सहानुभूति है यार, बढ़िया दोस्त था तू, अब ठीक, अब कुछ नहीं हुआ, है ना। वो था ना 12th फेल में, रीस्टार्ट तो ये वैसा वाला बात हो गई। इम्पैथी मीन्स कि यू आर ट्राइंग टू फील हाउ ही और सी इज फीलिंग। आप करो ना कि हम भी उसी नाव में सवार होकर देखना चाहते हैं और आपके साथ खड़े हैं, तो वो जो साथ खड़े हैं बोलने वाला जो चीज़ होता है, दैट वी कॉल एज इम्पैथी। थोड़े से इम्पैथी के थोड़ी सी डिटेलिंग लोगों ने करने की कोशिश की है। मेनी ऑफ अस नो, मेनी ऑफ अस आर डूइंग इट, है ना। सो रीअश्योरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेनिंग, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज लिसनिंग। आधे टाइम, इसलिए आप देखे होंगे वो रेड येलो ग्रीन वाले में पेशेंट वाला कलर जो होता है वो रेड कलर दिया होता है ना। बहुत बोलते भी है, हालांकि अलग अलग भी हो सकते हैं,
बट इन जनरल बहुत बोलते भी है, बहुत सुनना भी चाहते हैं। उनको कहानियाँ बड़ी मज़े आते हैं, कहानियाँ बड़ी सुनाते हैं। वो शुरू करेंगे वहाँ से कि सर हम इसको ना दरभंगा से निकले थे, वहाँ बाइक से ही जा रहा था, इसको कितना बार समझाया बाइक मत खरीदो, बाइक से घटना दुर्घटना होते रहती है, सुनता नहीं, हेलमेट भी नहीं लगाता है। अब गया, और गया भी तो पड़ोसी के बच्चे के साथ गया था, वो उसका आदत है ऐसे ऐसे करने को, कहाँ चल रही है उसकी। फिर उसके बाद थोड़ा सा उसका आएगा कि ये काम का बात है। सिमिलर वे में इफ़ ही और सी इज़ देयर रेड काइंड ऑफ, तो वो सुनना चाहता है कि आपसे भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहता है, एक्सप्लेन करना, समझना चाहता है, सुनना चाहता है। दे लाइक इट, ठीक है। देन वट एवर दे आर हैविंग द क्वेरीज, यू शुड बी आंसरिंग इन दैट वे। बहुत बार क्वेश्चंस होते हैं, जैसे इमरजेंसी में होता है तो उनके क्वेश्चंस हैं कि भाई आप ट्रांसफ़र लिख दिया सफदरजंग, बहुत आसान। तो वो ये जानना चाहते हैं कि भाई सफदरजंग में क्या होगा, क्या लाइफ के लिए कोई खतरा अब तो नहीं बचा है, कुछ और होने का बात है तो ठीक है, क्या ऐसा तो नहीं आप कह रहे हो कि वहाँ जाओ, यहाँ का पैसा भी जमा करके जाओ। उनके दिमाग में चलता रहता है। और ये ट्रॉमा सेंटर में स्पेशली बहुत ज़्यादा होता है। वो आते हैं, देखते हैं कि लगता है एम्स वालों ने प्राइवेट भी खोला हुआ है, प्राइवेट खोला हुआ है। तो आते समय पहले 15-20 मिनट वो रुक जाते हैं कि पूछ लो, कंफर्म कर लो, पैसे तो नहीं मांगे बाद में, अभी तो ले लिए, फटाफट कर रहे हैं। और फिर बोलेंगे कि इमरजेंसी का चार्ज अलग से 3 गुना जुड़ेगा, कि नॉर्मल रेट अगर इस CT स्कैन का 1000 है तो इमरजेंसी में 3000 मांगेंगे, और लास्ट में कहेंगे कि पैसा नहीं निकलेगा तो बॉडी भी नहीं निकलने देंगे। देयर आर इन्सिडेंसेस, दैट्स वाई इन इनिशियल स्लाइड्स आई शोन यू हाउ दे परसीव द थिंग्स, मेनी टाइम्स वी डोंट नो। और वहाँ पे कम्युनिकेशन जब रिड्यूस होती है तो और ख़राब होने लगता है, बिकॉज हम उनके परसेप्शन समझ नहीं पाते हैं। सो वट एवर क्वेरीज दे हैव, यू शुड बी आंसरिंग वट एवर बेस्ट पॉसिबल, चाहे टाइम की बात हो या क्वालिटी की बात हो। अगर नहीं करना, नॉन कम्युनिकेशन इज मेजर प्रॉब्लम देन पार्शियल कम्युनिकेशन। हमारे कम्युनिकेशन नहीं होने से प्रॉब्लम बढ़ रही है। सो लास्ट इज ब्रेकिंग द बैड न्यूज़। सो कभी किसी के वार्ड में या कहीं पे जहाँ आप काम करते हैं कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जिसमें कोई एक्सपायर हो गया हो, कोई या सीवियर इलनेस या सीवियर चीज़ें हो गई हों, ऑपरेट हुआ, उसकी किडनी निकालनी पड़ गई, होता है। कभी ट्यूमर मिलता है, आपने प्लान नहीं किया था, अंदर गए, इंजुरी ऐसी हुई कि आपको हो सकता है करना पड़े, या फॉर द रीज़न ऑफ गुड सेक ऑफ द पेशेंट यू डिड समथिंग विच इज़ यू थिंक इज़ वेरी बैड फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। सो कोई एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे? एनीवन? पीछे वाले कहेंगे मौका नहीं दे रहे, पीछे से भी बोल सकते हैं। यस मैडम प्लीज। Sir, like in heart surgeries, किसी बच्चे को हार्ट डिफेक्ट है, ऑपरेशन के लिए आए हैं, पेरेंट्स अपना सब कुछ वहाँ पे बेच के आए हैं, और उसके बाद आफ्टर ऑपरेशन बच्चा भी एक्सपायर हो जाता है, तो वो पीछे भी नहीं जा सकते, जिसको लेके आए थे वो भी नहीं है, और पीछे भी उनके कोई नहीं रहा, सब कुछ सेल करके भाग। सो ऐसे इंसिडेंसेस होते रहते। दो, अगर मेडिकल लिटरेचर को देखें तो उसमें कुछ परसेंटेज देते हैं। किताब के लिए तो परसेंटेज होता है कि इसमें 3% डेथ के चांस है, इसमें 30% चांस है, ठीक है। अगर ये हो गया तो इसमें ये चांस है, जो परसेंटेज रहते हैं। तो जो अभी हम बात कर रहे थे जनरल, वो सब अप्लाई होती है। अगर बैड न्यूज़ की भी बात होती है तो उसमें तो अप्लाई होगी होगी। एडिशनली यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन वाइल डिलीवरिंग द बैड न्यूज़। एक रफली ऐसे स्पाइक प्रोटोकॉल कहते हैं, बट अगर मैं बात करूं सेट द स्टेज, परसेप्शन, ये सब जैसे हम अभी बात कर रहे थे वो तो ऑलरेडी कॉमन है। इसमें जो थोड़ा डिफरेंस है स्ट्रैटेजी की, एक तो ये होता है कि जैसे हमारे यहाँ कॉमन इमरजेंसी में जो मैं बात करूं, पेशेंट आते हैं कार्डियक अरेस्ट में, ठीक है। दो सिनेरियो उसमें निकल के आती है। एक, जो अटेंडेंट मान के चल रहा है कि ये तो बचना नहीं है, ही इज़ हैविंग सम काइंड ऑफ आइडिया कि ना हिल रहे हैं ना बात कर रहे, कुछ तो है नहीं, जान बचा हुआ। वो आया है, उसको कुछ भी अगर डिफ्लेक्शन पॉजिटिव साइड जाएगा तो ही विल बी मोर देन हैप्पी। सो ही इज़ नॉट हैविंग दैट मच ऑफ एक्सपेक्टेशन। एक दूसरा सिनेरियो ये होता है कि वो आ रहा है, वो भी घर से ही डेड था,
बट वो एम्बुलेंस से झटका दिया तो उसका हाथ ऐसे हुआ तो उसको लगा कि अभी इशारा की अभी, अब वो उसके दिमाग में तो बहुत सारी चीज़ चल रही है, एंड ही केम टू इमरजेंसी. सो अगेन, हाउ योर इमरजेंसी इज रिसीविंग दैट काइंड ऑफ पेशेंट विदाउट डिले. जैसे आप रिसर्च बे में फट से आया पेशेंट, रिसर्च बे में आ गया, सब लोग एकदम से टीम पहुंच गई. ये यहाँ से ये प्रिपेयर्डनेस की पार्ट हुई, अलर्टनेस की बात हुई, जो उसको रिस्पॉन्ड में फील होगा कि नहीं दे आर वरीड फॉर मी. देन यू आर डूइंग मेनी थिंग्स. आपको ही पता है बचेगा नहीं बचेगा क्या होगा. यू आर ट्राइंग योर थिंग्स एंड यू आर मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर नॉन कम्युनिकेटिंग टू देम. उनको हम लोग क्या करते हैं, सर्जिकल इमरजेंसी के एक्सपोजर होगी, पहले सारे CPR मेन में हम लोग वहीं पे करते थे, तो पर्दा खींच गया, उनको बोलते थे बाहर रहिए. अब उनके दिमाग में क्या चल रहा है. सो ऐसा बैड सिनेरियो जहाँ पे आपको लगता है कि अब तो इसमें कुछ है नहीं, CPR ऑनगोइंग है एंड यू आर ऑल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग. अब यहाँ पे तो सीधे वो लास्ट ही वाला रिएक्शन है एक तरीके से. सो हम लोग क्या करते हैं इसमें, स्मॉल बर्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन इन इमरजेंसी केयर. देयर इज ए पब्लिश पेपर बाय डॉक्टर अक्षय, हमारे जो इमरजेंसी मेडिसिन के फैकल्टी है और हमारे PG ने पेपर किया है. तो हम लोग क्या करते हैं कि गिव द थिंग्स इन स्मॉल बर्स्ट. इमोशनली अगर आप देखेंगे ऐसे फेज में तो क्या होता है कि दे आर वेरी हाईली इमोशनली चार्ज्ड. तो इमोशनली चार्ज है, थोड़ा भी डिफ्लेक्शन प्लस माइनस में बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन करा सकता है. उससे एक्सपेक्टेशन है कि अभी तो जिंदा थे, आप ये बोल ही नहीं सकते कि मर गए. उसके दिमाग से तो यही लग रहा है कैसे बोल देंगे मर गए भाई, अभी तो जिंदा थे. सो देयर इज ए ह्यूज गैप, वो मिसमैच बहुत बड़ा है अभी. सो हम लोग क्या करते हैं इसमें, वी यूज टू गिव स्मॉल बर्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन. मतलब थोड़ा सा बताए कि देखिए इसमें हार्ट नहीं चल रहा है, सांस भी नहीं चल रही है, हमने सांस शुरू कर दिया है, हार्ट दबा के बाहर से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी देर में और अपडेट करेंगे. अब नाउ यू आर प्रिपेयरिंग एक्चुअली, यस यू आर राइट, यू आर प्रिपेयरिंग देम एक्चुअली. अब उसके साथ तो बहुत सारे लोग आएंगे, बिकॉज ऐसे सिनेरियो में यूज टू हेल्प. हमारी कल्चरली ये अच्छी चीज़ है कि पीपुल कम अलॉन्ग. तो 3-4 लोग हैं, बाकी लोग अभी 4 से इसको इन्फॉर्मेशन मिला. ही विल एक्ट एज ए फिल्टर कि कौन इमोशनली लेबाइल है, कौन स्टेबल है, किसको कितना बताना चाहिए. तो अब ही विल एक्ट एज योर कम्युनिकेटर टू दियर रिलेटिव्स. अब इसको समझ में आया कि शायद बचे शायद ना बचे. ही इज नाउ ए बिट डाउन, एक्सपेक्टेशन थोड़ा लो किया उसने, फिर आपने दोबारा कम्युनिकेट किया. ये उस समय की बात कर रहा हूँ जब चीज़ें हैपनिंग हो रही है. सो इन्फॉर्मेशन शुरुआत से ही हो तो ज़्यादा अच्छा है. सेकंड में आपने फिर बताया कि देखिए अभी तो ये कर दिया, अभी भी नहीं है बट हम कंटिन्यू कर रहे हैं और एक दवाई दे रहे हैं, एड्रेनलिन नाम की दवाई है वो हम दे रहे हैं, कोशिश जारी है. अभी तक BP पल्स तो नहीं है, हार्ट भी नहीं चल रहा है, अभी भी कोशिश कर रहे हैं. सो नाउ नेक्स्ट में उसको एक झटका और लगेगा कि 10 मिनट हो गया कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा और नीचे आएगा. अब धीरे धीरे क्या होगा, ये 2-3 कम्युनिकेशन में ही विल स्टार्ट वीपिंग, क्राइंग. सो वहाँ पे क्राई नहीं करता, वो बता देता है थोड़ा कि उतना अच्छा नहीं है, वो साइड में जाके कहीं, बिकॉज ही इज़ फीलिंग कि मैं अगर ब्रेक डाउन करूँगा तो बाकी जो रिलेटिव आए उसको बहुत दिक्कत हो जाएगी. लेकिन अदर्स रिलेटिव्स आर ऑल्सो सीइंग, क्योंकि वो कम्युनिकेशन चेन में है, तो उसके हाव भाव से उसको लग जाता है कि बचना नहीं है. तो दिस इज हाउ द थिंग्स गेट कम्युनिकेटेड. अगर आप एकदम से बताते शुरुआत में, अरे तो लेट हो गया, क्या है क्या बचा लेंगे यार, बहुत बार बोला जाता है. इंटर्नशिप डे 1 मैं इमरजेंसी की ड्यूटी पे था, गन शॉट इंजरी. बहुत कोई बड़ा फेमस बिजनेसमैन, उस समय नोकिया 1100 या कुछ लॉन्च हुआ था, मतलब मोबाइल की दुनिया शुरू नहीं हुई थी, उनके पास कलर वाले मोबाइल थे. तो मुझे इसलिए आज से याद है कि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन होंगे. सो एनीवे, सो दे केम, हल्ला जैसे होता है सिनेमा में जैसे दिखाते हैं कि लोग दौड़ते आ रहे हैं, डॉक्टर किधर है, ऑक्सीजन लगाओ, ये लाओ वो लाओ, चल रहा है. इंटर्नशिप पहला दिन ठीक है, पहला दिन हमारे साथ मेडिकल ऑफिसर होते थे, मैं और मेरा फ्रेंड दोनों बैठे हुए थे बैचमेट, और एक सीनियर मेडिकल ऑफिसर होते थे, दे यूज टू बी CMO देयर. तो हम लोग खड़े हुए देख रहे क्या हुआ, फिर बोले सर, तो सर तो है नहीं सर गए कहाँ ठीक है. तो फिर थोड़ा ट्राई किया कि देख तो ले, सीधे रास्ते तो एक ही है,
जिधर से मरीज आ रहा है उधर से जाने का रास्ता, इधर से तो गए नहीं, पीछे में एक ही कमरा और पूरी खुली हुई इमरजेंसी है। एनीवे वी स्टार्टेड कि ठीक है, देखा कि पल्स कुछ है नहीं, स्टार्टेड सीपीआर। जैसे ही पहले बार किया आवाज आई कड़ाक, तो बोला अरे पेस मेकर है अंदर, पेस मेकर टूट गया। बोले जान बचा कि पेस मेकर बचाऊं? तो नहीं आप करिए। सिस्टर को बोला जल्दी से एडीआर दो, वो बोल रही है सर वो तो कब से है। अच्छा हुआ कि उन्होंने धीरे से बताया, तो मैंने बोला सलाइन दे दीजिए। वो बोला वो बड़ी बोतल में भी वही डाला हुआ है, दे दीजिए आप। मीनिंग टू से कि हाउ यू क्रिएट दैट इन्वायरमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही आया यू नो कि नाउ यू कैनॉट से 3-4 बुलेट चेस्ट में थे और भी बुलेट्स थे, तो वो तो ऑलरेडी डेड था। बट अगर आते ही कहेंगे कि कुछ भी नहीं है, तो एवरीबडी विल थिंक कि भाई जेन्युइन एफर्ट तो कुछ किया है नहीं, आप सीधे कम्युनिकेट कर रहे हो, मतलब दिस कम्युनिकेशन इज रॉन्ग, लेट क्रॉस चेक इट। तो वहाँ से शुरुआत हो जाती बात की। सो वी ट्राइड वट एवर पॉसिबल एंड वी आर नॉट गॉड, वी डोंट नो, वी हैव सीन मेनी टाइम्स जिसमें हम लोग को भी लगता है कि नहीं रिवाइव होगा, रिवाइव होता है। सो बोथ ऑफ अस ट्राइड विथ आवर सिस्टर, हम लोगों ने ट्राई किया, 1 घंटे करीब हम लोग किए। उसके बाद फिर तब तक तो उन लोगों को समझ में आ गया कि कुछ, तब प्रिंसिपल मेडिकल सुपरिटेंडेंट सब लोग आ गए, तब तक मीडिया उडिया पहुंच गए, हमारा काम आसान हो गया तब तक। फिर हम लोग बैठे उसकी वो डेथ स्लिप बनाने के लिए, तो बोले कि यार ये समझ में नहीं आया, हमारे कॉलेज में कहाँ घूम गए हमारे सर, टॉयलेट में मिले सर। So it is very very important to communicate. While you are communicating, be very structured, try to create the environment, use clear cut words, no scientific words, which is easily understandable. Okay, many times you need to be direct, even if you are not so that direct, but the content should be very clear. It should be very clear, trying to answer all the queries whatever they are having related to the particular condition or scenario. Okay, so this is the way we should be interacting, and major issue nowadays is less interaction or no interaction. So I feel in coming time we should be having more communications, not only with the patient and relative, but with our colleagues also. Many times we are not communicating with our colleagues even. So it is a big thing which has been gifted by God, that we are able to communicate in much better way than the other species. So thank you very much. Thank you for listening. Thank you, Dr. Tej, for that excellent talk.